ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کیتھولک ایمان سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج میں اپنا سلسلہ وار پروگرام یسوع مسیح کے حواری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس پروگرام میں ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے متعلق باری باری تفصیل سے بتاتے ہیں، اور اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بابو جاوید جوزف، اور ان کے ساتھ ہیں بابو عمران صابر۔ بابو جی، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں یسوع مسیح کے حواری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ پروگرام یسوع مسیح کے حواری میں آج ہم بات کریں گے مقدس متی کے متعلق، اور جانیں گے سب سے پہلے بابو جاوید جوزف صاحب سے کہ مقدس متی جو ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بھائی جیسپر صاحب، جس طرح خدا اپنا سورج ہر نیک و بد پر چمکاتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، نیک ہے، پارسا ہے یا کوئی گناہ گار ہے، تو خدا جو ہے وہ ہر ایک کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے اور ہر ایک کو وہ رزق عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ بھی ایک ہی نظر سے سب کو دیکھتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے گناہ گار ہے یا کوئی پارسا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب وہ مقدس متی کا چناؤ کرتے ہیں، تو مقدس متی جو ہے خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ محصول لینے والا ہے، اور ان دنوں میں محصول لینے والوں سے یہودی لوگ جو ہیں وہ بہت نفرت کرتے تھے اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح اسے بلاتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو لے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر خدا یسوع کے پیچھے آ جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں اناجیل جو ہیں وہ اس کا اتنا ذکر نہیں کرتی، لیکن اناجیل ثلاثہ جو ہے یا 3 اناجیل جو ہیں اس میں مقدس متی کا ذکر جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے انہیں بلایا۔ مقدس متی کی انجیل میں لفظ متی جو ہے کہہ کر پکارا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا تحفہ، اور مقدس لوکا جو ہیں اور مقدس مرکز جو ہیں اسے حلفائی کا بیٹا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں جس کا نام لاوی ہے، تو لاوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور اس طرح خدا کے کلام میں ہمیں اس شاگرد کے 2 نام ملتے ہیں کہ لاوی بھی ہے اور متی بھی ہے۔ جس طرح مقدس پطرس کا یہ 2 نام تھے، اسی طرح مقدس متی جو ہے اس کے بھی 2 نام ہیں۔ لاوی اس کا پہلا نام ہے، اور جب چناؤ ہوا ہے تو خدا یسوع نے انہیں متی کا نام دیا ہے۔ اور اس طرح سے مقدس متی کی شخصیت جو ہے وہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں ایک محصول لینے والے کی حیثیت سے کہ وہ محصول لینے والا تھا، اور خدا یسوع نے اسے اپنا شاگرد ہونے کے لیے چنا، اور وہ اپنا سب کو چھوڑ کر وہاں سے خدا یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ اور روایت یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں سوچا سوائے اپنی ایک قلم کے، اس نے اپنی ایک قلم لی اور وہ لے کر یسوع کے پیچھے ہو لیا، اور اسی سے اس نے خدا یسوع کی داستان جو ہے اس کو رقم کیا۔ ہاں جی، جب آپ نے بات کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح بے شک کوئی گناہ گار ہے یا اچھے اعمال والا ہے، وہ چناؤ کے وقت ایسا نہیں سوچتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جو بیمار ہے اس کو طبیب کی ضرورت ہے، نہ کہ تندرست کو۔ بابو جی، اس دور میں جب کہ متی جو ہے محصول لینے والا ہے اور اس پیشے کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو کیا کہیں گے کیوں ایسا اس دور میں کیا جاتا تھا؟ میں بات کرنا چاہوں گا، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی حالات زندگی اور اس دورانیے کو دیکھتے ہیں جب وہ اس دھرتی پر آئے اور انسانوں میں نجات کا کام جاری کیا، اس دور میں رومی حکومت اس سارے علاقے پر قابض تھی، اور رومی حکومت نے عوام سے، بھلے وہ بہت سی قومیں وہاں پر بستی تھی، ان کی گورنمنٹ کے انڈر آتی تھیں، رومی حکومت نے کچھ لوگوں کو ہر صوبے کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ذمہ داری دے رکھی تھی۔ بلکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 212 سال پہلے باقاعدہ ایک گروپ تشکیل ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا، جو باقاعدہ رومی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کرتے تھے
तय कर लेते थे कि फ़लाँ सूबे से इतना टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए, वो गवर्नमेंट का ठेका पूरा कर देते थे और बाद में अपने नीचे मददगार और बहुत सारे लोगों को अपनी ड्यूटी पर मुकर्रर कर लेते, जिनसे वो मनमानी कीमत का महसूल जो है वो लिया करते थे। अब लोगों के अंदर पहली बात ये नफ़रत थी यहूदी कौम में कि एक तो ये टैक्स जमा होता है गैर कौम हुकूमत के लिए, जिनको वो पसंद नहीं करते थे। ये उनके अंदर नफ़रत थी कि ये हमारी कौम का पैसा, हमारी कमाई जो है गैर कौम के हाथों में जा रही है, गैर कौम के ख़जाने में जा रही है। दूसरी नफ़रत की एक बड़ी वजह ये थी कि जो लोग सूबे का टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट को पे कर देते थे, वो मुकर्रर की हुई शरह से हद दर्जे ज़्यादा टैक्स लोगों से वसूल करते थे, ताजरों से, ख़रीदो फ़रोख्त पे, मंडियों पर, और जो चौकियाँ थी रस्तों में, चौराहों में मुकर्रर की गई थी, जिनमें से एक पर मुक़द्दस मत्ती भी बैठते थे। ये लोगों से जो शरह थी, मुकर्रर शरह, उससे बहुत ज़्यादा तजावज़ कर गए और बहुत ज़्यादा अज़ाफ़ी रकम लेते थे जो लोगों पर बेजा बोझ था। और लोग इसकी वजह से महसूल लेने वालों को, महसूल लेने वाले के इंचार्जों को और जितने भी लोग इस पेशे से वाबस्ता थे, उनको इस मुआशरे के हद दर्जे के बड़े गुनहगार समझते थे। लोग ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते थे, मेल जोल नहीं रखते थे, रिश्तेदारी नहीं करते थे। मुक़द्दस मत्ती जो है ये भी ऐसे ही एक ग्रोह के एक मेंबर हैं, एक नुमाइंदे हैं। और अगर हम देखें तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि लोग समझते थे कि शायद जो गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं उतने की चीज़ नहीं होती जितना उस पर टैक्स लागू कर दिया जाता है। सो लोग एक तो इन्हें नफ़रत भरी निगाहों से देखते थे कि ये जुल्म करने वाले लोग हैं, ये गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं, ये मज़हब पर और बाकी सारी ख़रीदो फ़रोख्त पर भी नाजायज़ पैसा कमा कर हमसे नाजायज़ पैसा वसूल करते हैं और फिर एक गैर कौम के लिए काम करते हैं। सो लोग इनको हद दर्जे के गुनहगार तस्वर करते थे। यही रवैया मुक़द्दस मत्ती का भी था। मुआशरे में लोग इनको नफ़रत की निगाहों से देखते हैं, लोग इनको शायद समझते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस में एक बहुत बड़ा वाक़या है। एक फरीसी महसूल लेने वाला वो दुआ करने के लिए जाता है और एक फरीसी जाता है दुआ करने के लिए, तो फरीसी अपनी नेकियां गिनवाता है और गुनहगार महसूल लेने वाला, इसको मॉडल के तौर पर पेश किया गया है कि गुनहगारों में भी जो हद से ज़्यादा बड़ा गुनहगार है उसको दिखाया गया है कि वो जब ताइब होता है तो वो मुआफ़ी पा कर आता है। सो महसूल लेने वालों को इसलिए नफ़रत की निगाह से देखा जाता था क्योंकि लोग समझते थे ये बददयानत हैं, ये नाजायज़, ये हद से ज़्यादा टैक्स लेकर लोगों पर बोझ डालते हैं और इसलिए ये खुदा और इंसानियत के कातिल हैं। बिल्कुल, लोग कहते थे कि ये लोग जो हैं वो खुदा के फर्मा बरदार नहीं हैं, बल्कि ये जो रोमी हुकूमत है उसके फर्मा बरदार हैं। सो जब कभी ये हैकल में भी जाते तो लोग इनको हद तक नफ़रत की निगाह से देखते थे। जी बाबू जवेद जोसेफ साहब, आप मुझे बताएं कि जब लोग इतनी नफ़रत के साथ ऐसे लोगों को देखते थे जैसे मुक़द्दस मत्ती जब मसूल लेते थे, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनका चुनाव क्यों किया? ये खुदावंद यीशु मसीह का चुनाव जो है, मैं ये समझता हूँ कि हर उस इंसानियत की नुमाइंदगी करता है जिनसे लोग नफ़रत करते हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि खुदा सबका खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए भी उतना ही अहमियत के हामिल हैं। और जब ये महसूल लेने वाले जो लोग हैं, यहूदी लोग इन्हें इतनी अच्छी निगाह से नहीं देखते, कोई अहमियत नहीं देते, और जिनको कोई अहमियत नहीं देता उन्हें यीशु अहमियत देता है। और ये समझकर कि जब वो अपने आप को कफन होम के एक चौकी जो है, यानी उसमें उसने अपने आप को मुदफ़न कर दिया है, अपनी सारी सलाहियत उसकी जो है वो दफन होकर रह गई है, तो खुदावंद यीशु उन्हें वहाँ से बुलाते हैं। और एक महदूद जगह पे रहने वाला मत्ती जो है अभी वो लामहदूद बन गया है और खुदावंद यीशु के यानी पीछे चलता है, उसकी पैरवी करता है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि उसने मसूल की चौकी से कुछ नहीं लिया,
सब कुछ ना कोई हिसाब दिया किसी को, ना कुछ और लिया है, बल्कि सिर्फ एक कलम अपनी ली है और वहाँ से निकला है। और मुक़द्दस मत्ती के बारे में ये बयान किया जाता है कि उन्होंने मख्तूनों के लिए जो अंजील मुक़द्दस लिखी सबसे पहले अब्रानी ज़बान में। ये दो शागिर्द हैं, मुक़द्दस यूहन्ना और मुक़द्दस मत्ती जो हैं, जिन्होंने अंजील जो है खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखी, बाकी शागिर्दों के शागिर्द हैं। तो इस तरह से मुक़द्दस मत्ती को ये भी फजीलत हासिल है कि उसने इब्रानी ज़बान में खुदा यीशु की सवान उम्री जो है वो लिख कर उन लोगों को दी जो वहाँ के रहने वाले थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी रवायात भी हैं कि उसकी अंजील जो है वो दूसरी जगह भी पहुँची। जिस तरह हम जानते हैं कि पैंतुस जो है, जब उसने अपने हुकूमत के साथ, रोमी हुकूमत के साथ गद्दारी की है, बगावत की है, तो वहाँ से छोड़कर वो हिंदुस्तान की तरफ आ गया। जब वो आया तो यहाँ उसने मुक़द्दस मत्ती की वो अंजील जो अब्रानी में लिखी हुई थी उसको देखा, और ये अंजील जो है वो बर्तल में ही इस हद तक लेकर आया कि ये अंजील जो है मुक़द्दस मत्ती ने लिखी है। तो हमारी इस पाक धरती में सबसे पहले मुक़द्दस मत्ती की लिखी हुई इब्रानी अंजील जो है वो यहाँ पहुँच चुकी थी और लोग उसका मुतालिया करते थे। बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हर शख्स की जो खूबियाँ हैं उनको जानते थे, उनकी सलाहियत को जानते थे, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की टीम तैयार की है तो उन्होंने बड़ी दिलजमी के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ और एक टीम वर्क के साथ खुदावंद यीशु मसीह का जो पैगाम है उसको आगे फैलाया है। जैस्पर भाई, मैं यहाँ एक बात का इजाफ़ा करना चाहूँगा। मुक़द्दस मत्ती को चुनने से मसीही ईमान में एक बहुत बड़ा एक नया दरवाज़ा खुलता है। खुदावंद यरूशलेम में दाखिले से पहले शमौन के घर जब खाना खाने गए तो एक कस्बी औरत उसके पाँव को छूती है, अतर उसके पाँव पर डालती है, अपने बालों से साफ़ करती है, और बहुत से लोगों को ठोकर लगी कि ये गुनहगारों को अपना बदन छूने की इजाज़त देता है, ये गुनहगारों से मिलता जुलता है। इसी तरह आज जब वो यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती का चुनाव करते हैं तो वो आगाह करना चाहते हैं, हमें पैगाम देते हैं कि मसीहत गुनहगारों को खुले दिल से कबूल करती है। मसीहत का पैगाम ये है कि उसमें हर गुनहगार के लिए जगह है। हर गुनहगार, भले उसका माजी कितना ही बेहानक क्यों ना हो, अगर वो सच्ची तौबा करे तो मसीहत उसको आज भी अपनाने के लिए खुले दिल से अपने बाजू फैलाकर उसे कबूल करती है। सो मुआशरे में इस अमल ने, यीशु मसीह के इस अमल ने मुआशरे में एक तहलका मचा दिया था कि सब गुनहगारों से नफ़रत करते हैं, सब गुनहगारों को गिरी हुई निगाहों से देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा निजात दहिंदा आया है जो गुनहगारों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत और वैल्यू देता है और खुशी से कबूल करता है, जिसके अंदर इतना बड़ापन और हौसला है कि वो गुनहगारों को भी अपने दामन में समेटता है, बशर्ते कि वो तौबा करे। बाबूजी, चुनाव तो हो गया मुक़द्दस मत्ती का, तो उनकी अंजीली खिदमात के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हम बात करें मुक़द्दस मत्ती की अंजीली खिदमात के बारे में तो उनकी खिदमात बड़ी खूबसूरत हैं। सबसे पहले उनकी बहुत बड़ी जो काविश है, कोशिश है, वो ये है कि ये सबसे पहले वो बंदे हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की सवाने उम्री को तहरीर किया। तारीख़ बताती है सन 80 से 90 के दरमियान मुक़द्दस मत्ती वो पहले रसूल हैं या शागिर्दों में से पहले हैं जिन्होंने इब्रानी ज़ुबान में यीशु मसीह की हालाते ज़िंदगी को, मोजज़ात को और उनकी तालीम को कलम बंद किया। इब्तदाई तौर पर तो ये यहूदी कौम के लिए थी, जो यहूदियों में से मसीही ईमान में आए उनके लिए थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि तारीख़ बताती है कि ये गैर कौमों के लिए भी, सब के लिए ये यीशु को समझने का वसीला बनी। सो इनकी जो सबसे पहली काविश है अंजीली खिदमात के हवाले से वो ये है कि यीशु मसीह की हालाते ज़िंदगी को, मोजज़ात और तालीम को बाकायदा तौर पर कलम बंद करना, लिखना। फिर इसके साथ साथ अंजीली खिदमात में शामिल है कि वो हकीकी पैरोकार थे, ना सिर्फ लिखी यीशु मसीह की तालीम बल्कि उस तालीम को अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया और मजबूती पर उस पर अमल पैरा रहे। फिर अंजील में अगर देखा जाए तो बाला खाना में जब शागिर्द दुआ कर रहे थे तो ये उन रसूलों के साथ थे।
फिर आगे चलकर अगर हम देखें, खुदावन यीशु मसीह को मुकद्दस मत्ती एक बहुत फ़र्क नज़र से देखते हैं। जैसे मैंने पहले बात की, उन्होंने महसूस किया कि ये कोई ऐसा उस्ताद आया है जो गुनहगारों को कबूल करता है, गुनहगारों को नफ़रत की निगाह से नहीं देखता। इससे पहले शरीयत में देखें हम, और किसी भी मज़हब में हम देखें, जो लोग रास्तबाज होते हैं उनसे लोग दोस्ती करते हैं, जो गुनहगार होते हैं उनसे लोग किनारा करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि यीशु मसीह मुझे गुनहगार को इतनी कबूलियत के साथ अपने साथ ले लिया है इन्होंने, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यीशु मसीह को अपने घर बुलवाया और उनके ग्रुप के जितने बाकी लोग थे महसूल लेने वाले, उनसे भी मिलवाया, ताकि वो भी यीशु को जाने, यीशु उनसे मिलें और वो भी यीशु की निजात हासिल करें। यानी वो दूसरे गुनहगारों को भी यीशु की निजात में शामिल करने से अंजीली खिदमात को सर अंजाम देते हैं। फिर ना वो सिर्फ़ अंजील मुकद्दस को लिखते हैं, ना सिर्फ उनको अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाते हैं, बल्कि उनका प्रचार करते हैं। अंजील का प्रचार करते हैं अपने ना सिर्फ किरदार से, बल्कि बाकायदा दूसरी जगहों पर जाकर उसका प्रचार करते हैं, और इसी प्रचार के दरमियान आखिरी हद तक के शहादत भी पाते हैं। अंजील की खातर, अंजील की गवाही की खातर बिल्कुल शहादत का दर्जा ये भी चीज़ पाते हम हैं। बाबूजी से जानेंगे कि आप उनकी मनादी और उनके शहादत के बारे में क्या कहेंगे। जी, रवायात जो हैं उनसे ये ज़ाहिर होता है कि मुकद्दस मत्ती ने अपनी मुनादी का आगाज़ जो है वो यरूशलेम से ही कर दिया था। जब उन्होंने अपनी अंजील जो है इब्रानी ज़बान में लिखी, तो यहाँ के लोग जो हैं, जो मख्तून लोग थे या यहूदी लोग थे, ताकि वो इस अंजील को पढ़ें और खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं। तो इस तरह से बहुत सारी रवायात हैं कि जब खुदा यीशु मसीह जो है वो आसमान पर उठाए गए हैं, तो शागिर्दों ने आपस में ये कुरा डाला कि हमें किस तरह यानी खुदा यीशु के नाम का प्रचार आगे लेकर जाना है। और कुरान अंदाज़ी में मुकद्दस मत्ती का नाम जो है वो इथोपिया की तरफ आया है। और दूसरी रवायत जो हैं वो ये हमें बताती हैं कि मुकद्दस अम्ब्रोज़ जो हैं वो कहते हैं कि वो ईरान की तरफ आए थे, और पालनेसियस जो है उसका कहना है कि ये पार्थिया की तरफ आए थे, और एज़ीडोर जो है वो इसको कहता है कि वो मकदूनिया की तरफ गए। तो ये मुख्तलिफ रवायात हैं, कोई कहता है कि वो ईरान की तरफ आए, कोई मकदूनिया की तरफ, कोई पार्थिया की तरफ, कोई एथोपिया की तरफ। तो ज़्यादा पावरफुल रवायत जो है वो यह है कि मुकद्दस मत्ती ने अपनी मुनादी जो है वो इथोपिया का इलाका जो है वहाँ की। और रवायत है कि जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया था, तो अक्सर शागिर्द जो हैं, ये मुकद्दस मत्ती भी उनमें है, अक्सर शागिर्द जो हैं उन्होंने उस दिन से गोश्त खाना ख़त्म कर दिया था कि आज से हम गोश्त को नहीं खाएंगे। मुकद्दस मत्ती भी इसमें शामिल था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सादा ज़िंदगी गुजारते हैं और खुदा यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। और इस तरह से इथोपिया में गए, वो जाकर वहाँ खुदा यीशु की मनादी की। लेकिन ये इलाका जो इथोपिया का इलाका है, ये सारे आदमखोर लोग थे, और ये क्या करते थे कि लोगों को पकड़ते हैं और सबसे पहले क्या करते कि उनकी आंखें जो हैं उनको अंधा करते, और उसके बाद 27 दिन तक उन्हें भूखा छोड़ देते, बिल्कुल खाली पेट हो जाए, और फिर वो आग पर उन्हें जलाते, काटते और खाते थे। और मुकद्दस मत्ती जो हैं जब ये इथोपिया में गए हैं, तो वहाँ उनके साथ भी इसी तरह हुआ कि वो प्रचार कर रहे थे, खुदा यीशु का मनादी कर रहे थे, तो वो आदमखोर जो हैं उनके हत्थे चढ़ गए। और उन्होंने मुकद्दस मत्ती के साथ भी इसी तरह किया। लेकिन रूहानी तौर पर जब इनका मिलाप आपस में होता है, तो मुकद्दस इंद्रियास जो हैं उनको ये ख़बर मिलती है, क्योंकि अक्सर मुकद्दस मत्ती जो है वो दुआ किया करते थे, और मुकद्दस इंद्रियास जो हैं उनको ये ख़बर मिलती है कि मुकद्दस मत्ती जो हैं वो आदमखोर लोग जहाँ उनके हत्थे चढ़े हैं उनके पास हैं। और मुकद्दस इंद्रियास अपने साथ कुछ लोगों को मिलाते हैं और फिर इथोपिया की तरफ जाते हैं। और वहाँ जाकर मौजज़ाना तौर पर जब वो साहल के ऊपर हैं, तो एक कश्ती वाला नौजवान है, उसे कहते हैं कि हमें तू जल्दी ले चल, और पलक झपकते ही वो उस साहल पे पहुँच जाते हैं। और वो इंद्रियास से क्या कहता है कि जाकर मत्ती को आज़ाद करवाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो समझ जाते हैं कि ये हमारा यीशु मसीह है। और जब वो जाते हैं मुकद्दस मत्ती को, मौजज़ाना तौर पर मुकद्दस इंद्रियास में मैं ये समझता हूँ
سب شاگردوں میں اتنی قدرت ہے، معجزانہ طور پر وہ بہت سے معجزے اس نے اپنی منادی کے اندر کیے ہیں، تو معجزانہ طور پر مقدس متی کو وہ وہاں سے آزاد کرواتے ہیں اور واپس لے کے آ جاتے ہیں، لیکن مقدس متی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر خدا یسوع کا پرچار کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، لیکن وہاں کا سردار جو ہے یہ سب کچھ دے کر خوش نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کے متی ہو رہے ہیں اور اس کی شاگردی میں آ رہے ہیں، اور اس نے کیا کیا کہ مقدس متی کو پکڑا اور اس کے جسم پر تیل اور گندک جو ہے وہ مل دی، اور ساتھ ہی جو بنے ہوئے تھے اسٹیچو ان کے درمیان انہیں آگ لگا دی۔ لیکن وہ آگ جب ان اسٹیچو کے درمیان میں سے نکلی ہے تو ایک اژدہا بن کے وہ اس جو سردار تھا اس کو پکڑ لیتی ہے، لیکن متی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا، وہ معجزانہ طور پر وہ سردار جو ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن مقدس متی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ سردار جو ہے وہ مسیحیت کو قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مسیحی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس ایریے کا وہ کاہن بنتا ہے، کیونکہ وہ سردار تھا، اور اس کے ساتھ ہی سارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مسیحیت کو قبول کرتے ہیں۔ بابو جی جیسے سارے شاگردوں کو نشانات دیے گئے، تو اس کے نشانات کیا تھے؟ ہاں جی، مقدس متی جو ہے اس کو یعنی 3 تھیلیاں جو ہیں یہ علامت ان کی ہے، کیونکہ یہ محصول لینے والا تھا، اور 3 تھیلیوں سے مراد جو ہے وہ یہ صبح دوپہر شام کہ ہر وقت جو ہے یہ محصول اکٹھا کیا کرتا تھا، تو علامتی طور پر کلیسیا اسے 3 تھیلیوں کا نشان دیتی ہے، اور 21 ستمبر جو ہے وہ اس کو یعنی کلیسیا جو ہے ان کی عید مناتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بابو جی، آپ نے بڑی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ مقدس متی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی گفتگو سے، آپ کے اس علم سے، آپ کی ان باتوں سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے مقدس متی کے بارے میں سنا کہ وہ ایک محصول لینے والے تھے اور گناہ گار آدمی تھے، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے اسے چنا۔ سو آج ہمیں بھی دعوت ہے کہ بے شک ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں، کتنے بھی خدا سے دور ہیں، اگر ہم سچی توبہ کریں تو خدا ہمیں بھی چننے کی طاقت رکھتا ہے، ہمیں بھی چن سکتا ہے اور ہمیں بھی اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔